Hello, everyone. This is Anita from Indian American TV. I'm the founder and chief strategist of Happiness Factors, where we are building the bridge between the holistic practices of the East and the West to create mental health and emotional wellness solutions. I will share the contacts at the end of the video. And today I have the honor of introducing Shalja Singh to you, the founder of Ayurvastra, if I'm saying it correct. And she is not just a founder of Ayurvastra, but she is also a mom, a wife, an immigrant, and an activist for everything which requires justice. So, with not much ado, let's welcome Shalja Singh. So, Shalja, tell us a little bit about yourself. Anita, thank you for having me here on the show. Lovely of you that you're doing this show. We are so delighted. Okay, as far as I'm concerned, my name is Shelja. And the company that I run, my business is Ayurvastram. I was born and brought up in India, and I came here when with my husband when we got married, and ever since I have been for the past 20 years in the Bay Area. So it has become our home, and it was here that I started Ayurvastram because I am from a fashion background. This is a fashion company, and I made the best use of my Indian background because of all the fashion elements that I know of, the crafts and the beautiful embroideries. And being here in US, I decided to blend the Indian and the Western, and created a fashion line that there is a group of that a lot of American as well as Indian women appreciate and buy. So that is in brief about me. As you said, I'm a mom. I have a son who is soon graduating from high school, and a wife. Well, of course, and I am definitely like Anita. We are passionate about many things. Yes. So thanks for having me here. Thanks for the introduction. So, what how we run this Indian American TV show is that some of the questions we do in English and some we do in Hindi, and whoever wants to put the subtitles who doesn't understand Hindi, they can do that. So, मेरा दूसरा सवाल ये है, आप ये बताइए जब आप इंडिया से यहाँ आई तो आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जब मैं इंडिया से यहाँ आई तो पहला तो ये था कि पहले तो शुरू में सोचा नहीं था, लेकिन यहाँ पर पूरा जब आप छोड़कर आते हैं तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। हाँ, तो आप जो है कुछ समझ नहीं आ थोड़ा डिसोरिएंटिंग बहुत होता है। तो कि क्या करें क्योंकि हस्बैंड उनकी तो जॉब है, हुँ, तो वो तो अपनी जॉब पे जा रहे हैं, और जब आप मैं यहाँ आई तो फिर मेरे पास तो वर्क परमिट भी नहीं था। हाँ, तो उससे पहले मैं इंडिया में काम करती थी, एंड और पूरी सोसाइटी होती है तो उसमें आपको पता नहीं चलता है कि आपकी लाइफ कैसे निकलती जाती है। यहाँ पर आके एकदम जैसे रुक जाती है। आप एक एक पर्सन पे डिपेंड हो जाते हैं हाँ, बहुत ज़्यादा। तो शुरू में तो काफ़ी ब्लैंक सा था, एंड धीरे-धीरे ट्राई किया। ये गाड़ी चलानी भी नहीं आती थी यहाँ पर, तो धीरे-धीरे थोड़ा इंडिपेंडेंस आई, थोड़ा समझा कि क्या करना चाहिए। पर आई थिंक कि जब मेरा बेटा हुआ, हुँ, उस समय मैंने सबसे ज़्यादा अ, अपनी फैमिली और अपनी सोसाइटी को मिस किया था। हाँ, क्योंकि हाँ, बच्चा आप जो है वैक्यूम में नहीं पाल सकते हैं। उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि सोसाइटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, पर अब चीज़ें बदल गई हैं, तो काफ़ी कुछ आई थिंक टेक्नोलॉजी ने भी बहुत हेल्प किया है। हाँ। कि सो अब जैसे ज़ूम ही है, तो फिर उससे थोड़ा-सा उतनी दूरियाँ नहीं लगती हैं, जो पहले लगा करती थी। तो हाँ, तो हुँ, आप ये मुझे बताइए जैसे साइकोलॉजिकली इंडिया में ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी होती है।
कि दादी नानी, मौसी मौसा, चाचा चाची या मामा मामी सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं फैमिली में। और यहाँ पे हो जाता है कि एकाएक हम कोई भी, जैसे आप आई अपने पति के साथ, तो न्यूक्लियर सिर्फ आपस में हाँ। सब हुँ। कुछ करना पड़ता है। तो उसमें साइकोलॉजिकली आप बताएंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट होता है कंपेयर टू एक लाइक बड़ी फैमिली वाली सोसाइटी और एक न्यूक्लियर सिर्फ हस्बैंड वाइफ वाला फैमिली। तो वहाँ पर ये था कि आप एक पूरा अ, जैसे आपकी पूरी एक दुनिया थी वहाँ पर। हाँ, आपको पता था कि आज सुबह उठना है, इतने लोग मिलेंगे, उसमें आप ढले रहते हैं, आप सोचते भी नहीं हैं। हाँ, फॉर ग्रांटेड भी बहुत चीज़ें लेते हैं हाँ, आप। कि अभी आज शाम को कज़िन का बर्थडे है तो जाना है, या फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो कितने लोग आते हैं मिलने, हाँ। कितना फिर फंक्शन करते हैं, वो सब। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर मिसिंग थी। हुँ, हुँ। उसके लिए जब वो तभी होता था जब मैं वापस इंडिया जाती थी। तो रोज़मर्रा की उसमें जो है बच्चे के साथ तो ख़ासकर क्योंकि लगता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं उतना कुछ नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए जो कि वहाँ पर ऑटोमैटिकली हो जाता है। क्योंकि हाँ, वो जितना सोशलाइज़ वहाँ पर होता है और जितना बच्चा जब सोशलाइज़ होता है, 4 लोग बोलते हैं तो बच्चा खुश भी रहता है। यहाँ पर वो चीज़ डेफ़िनिटली मिसिंग थी। और सच बोलूँ तो यहाँ पर प्ले डेट होते हैं। हाँ, तो प्ले डेट का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत आर्टिफ़िशियल लगा, क्योंकि उसके लिए इतनी तैयारी करके फिर 1-2 घंटे मिलने जाओ। हम हाँ, लोग को याद है बचपन में हम बस बाहर चले जाते थे घर के और खेल हाँ, लेते थे। तो मैंने सुना है अमेरिका में भी ऐसा ही था, वो अब बदल गया है। तो उस तरह से अकेलापन जिसे हाँ। बोलते हैं, वो उस बहुत तरह ज़्यादा है यहाँ पे। वो काफ़ी होता है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि आपका अगर खुद का काम ना हो तो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। तो आपको बिज़ी रहना यहाँ बहुत ज़रूरी है। और जब मेरा बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया। हाँ, हाँ। तो जब से मैंने ये बिज़नेस शुरू किया, तो एज़ अ बिज़नेस तो जो सक्सेस है वो तो है ही। आई थिंक ऑनेस्टली तो वो मुझे जो है मानसिक रूप से इसने मुझे बहुत मेरी मदद की है। हाँ, क्योंकि जितनी एनर्जी होती है, जितना आपकी सोच होती है, कहीं चैनलाइज़ हो गई। हाँ, इंडिया में तो सोचना ही नहीं पड़ता था। वो दिन कैसे निकल जाते थे पता नहीं चलता है। हाँ। तो वो फ़र्क है। अ, नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ पे अकेलापन और लोनलीनेस और एंग्ज़ायटी की इसलिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, क्योंकि अधिकतर लोग अपने अपना इंडिपेंडेंटली अकेले रहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो कभी कुछ मानसिक तनाव या मानसिक प्रॉब्लम आया, तो सिर्फ़ डॉक्टर के पास से उसका हल नहीं निकल पाता है। जो सोसाइटी या फिर सपोर्ट सिस्टम है, वो ज़्यादा अच्छे से ठीक कर देता है। जैसे मेरी एक दोस्त बोलती है कि इंडिया में कोई डिप्रेस्ड रह ही नहीं सकता। डिप्रेस्ड होके तुम अपने रूम में सो भी रहे होगे तो तुमको 10 लोग खींच के ले जाएँगे हाँ, और और अपने साथ बोलेंगे खाओ-पियो या हाँ। बाज़ार चलो या भजन चलो, कहीं भी मंदिर चलो, सिनेमा चलो, तो अपने आप ही वो दूर हो वो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल दवा सही की बात ज़रूरत है। नहीं पड़ती। मुझे हाँ, तो लगता है कि यहाँ अच्छा-भला इंसान भी डिप्रेस इसलिए हो जाता है, हाँ, क्योंकि अकेले रहे हो तो अकेले सोचते बहुत हो, हाँ, और सोचते ज़्यादा हैं तो एंग्ज़ायटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो हाँ, उन सब से जहाँ कॉम्प्लिकेशन नहीं होने चाहिए वो हो जाते हैं। आपको फिर समझ में आता है कि समाज की वैल्यू क्या होती है, कि जैसे कहते हैं मैन इज़ अ सपोर्ट सोशल सिस्टम। एनिमल। हाँ, हाँ, जो तो हाँ। वो बात बिल्कुल सही। ये एक बात मैं ज़रूर बोलूँगी कि इंडिया में थोड़ा-सा लोग ज़्यादा ही घुस जाते हैं एक-दूसरे हाँ, की लाइफ में। हमको वो एक-दूसरे के पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, वो उसका बोलते हैं। ऑपोज़िट प्रॉब्लम है हाँ, वहाँ पे। हाँ, तो कभी-कभी वो ज़्यादा होता है तो उसको हैंडल करना आना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ही आपका किसी से कोई इतना मतलब ही नहीं होता है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ भी नेबरहुड में सब बहुत प्यारे लोग रहते हैं, पर हाँ, सब इतने बिज़ी रहते हैं कि किसी के लिए नेबर का वो माहौल ही नहीं है। हाँ, वो सब अपने-अपने बिज़ी हैं काम में। हाँ, आई थिंक सबने यही, बहुत इंडियन भी हैं, तो सबने यही सोचा कि क्या नाम है, एक ही तरीका है कि आप बिज़ी हो जाइए काम में। हाँ, तो उस इसलिए यहाँ पर लोगों का वही पास टाइम है, काम करना। हाँ, काम करना और उसके कारण इमोशनल ऐसा होता है ना कि सैटिस्फैक्शन
जो होता है वो उतना डीप लेवल में नहीं मिल पाता है, नहीं जैसे होता। काम से या बाहर की चीज़ों से सरफेस लेवल में मिल पाता है, तो जी, इसीलिए कभी-कभी आउट ऑफ हैंड भी हो जाता है, यस, जो हाँ, हम सुनते हैं इधर-उधर की खबरें। और अगर तो उस मामले में ज़्यादा सोसाइटी में रहना, ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप रखना, मतलब फ्रेंडशिप्स रखना या आपस में शेयर करना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो दिमाग में है वो बाहर निकल जाए, नहीं तो सोचते-सोचते वो तिल का ताड़ नहीं बन जाए, राइट? हाँ, बिल्कुल सही बात है। वो प्रॉब्लम, हाँ। वो तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। हाँ, A तो आप lot of people, खासकर लेडीज, इवन मेन, दे डोंट कम अक्रॉस एंड दे शेयर भी नहीं करते हैं हाँ, उनके साथ क्या हो रहा है। आई थिंक कि वो एक डर से भी नहीं शेयर करते हैं कि शायद उनकी बात कोई सुनेगा नहीं तो एक हाँ, रिजेक्शन फील होगा। हाँ, तो इसलिए भी नहीं तो काफी इश्यूज होते हैं एब्सोल्युटली फैमिलीज के अंदर, आपको बाहर हाँ, से पता ना भी चले तो। हाँ। तो नहीं, बात फैमिलीज़ के इश्यूज़ होते हैं, लेकिन वो हो जाता है ना कि वो आपस में एक बातचीत करके या गुस्सा करके किसी भी तरीके से रिज़ॉल्व हो जाता है, मन के हाँ, बाहर निकल जाता है, तो हाँ, उसको हाँ, मतलब मेंटल इश्यूज़ उतना ज़्यादा हाँ, नहीं होता। प्लस वो भी हो जाता है कि अगर आप नॉर्मली डिस्कस कर रहे हो, तो वो उतना बुरा नहीं होता है, राइट? हाँ, हाँ, दैट्स द थिंग। या तो आपको एग्जैक्टली। या तो आपको ये क्या डिफरेंस लगा, जैसे कि आपने अपने बच्चे को यहाँ बड़ा किया वर्सेस जो उसके कज़िन्स होंगे जो इंडिया में बड़े हो रहे होंगे, उसमें आपने क्या-क्या डिफरेंसेस महसूस किए? तो डेफिनेटली क्योंकि कल्चर अलग है। हुँ, और तो एक तरह से जो उसे घर में जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी और हाँ, बाहर जाके स्कूल में जिस तरह की एक्सपेक्टेशन होती है, हुँ, उसमें उसमें फर्क था। तो अम, अ, बच्चे के लिए तो उसने वही लाइफ देखी है, हाँ, तो उसको वो तो समझ भी नहीं पाएगा कि किस बात से वो क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है। पर मैंने ये महसूस किया कि मतलब कि जिस तरह के दोस्त बन सकते थे इंडिया में अगर हाँ, रहते, उस तरह की दोस्तियां यहाँ पर बनानी मुश्किल है। एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्ले डेट्स का बड़ा हाँ, सिस्टम है, हाँ, तो शुरू में तो फॉर्मल, हाँ, हाँ, उसको पूरा उनकी मदर के साथ अरेंज करो ये हाँ, टाइम, फिर ये सब लो और फिर वहाँ पूरे तैयार होकर जाओ, तो फिर 1-2 घंटा खेलो। हुँ, और एक नेचुरल जो दोस्तियाँ बनती हैं, जो हाँ, कि बच्चे आपस में अगल-बगल के मिलकर खेल लेते हैं। हाँ, पास पड़ोस, बस खाली दूर से नज़र रखती हैं कि सब ठीक है, चल रहा है कि नहीं, बच्चा सेफ है। हाँ, उसके अलावा और डेफ़िनेटली सोशल जो अम, अ, एक थोड़ा-सा एम्प्टीनेस होता है, जो जो चीज़ मेरे बच्चे को भी कभी-कभी अकेलापन लगता है। एक ही बच्चा है, हाँ, तो उसकी भी प्रॉब्लम है। उसको अकेलापन है, उसको वो बहुत ज़्यादा सीक करता था कि उसकी फैमिली या उसके हाँ, कज़िन्स आ जाएँ या वो हाँ, चला जाए और उनसे बात करे। तो उसको एक अकेलेपन की थोड़ी परेशानी तो थी। हाँ, जबकि हम लोग जब वो छोटा था तो अ, ग ज जाते ज़रूर थे इंडिया हाँ, काफ़ी। जब जब स्कूल शुरू हुआ तो गर्मियों में जाना पड़ता था, हाँ, लेकिन 1 साल में 1 बार जाते ज़रूर थे। हाँ, और जिससे कि मुझे और उसको पहली जो लैंग्वेज मैंने सिखाई जब वो हाँ, फर्स्ट उसने हिंदी ही बोली थी, क्योंकि हाँ, मुझे पता था कि अंग्रेजी तो यहाँ वो बोल कांग्रेचुलेशन, हाँ, अपने आप सीख लेगा। अपने आप ही सीख लेगा। लेकिन अगर हिंदी तो शुरू में वो 3 साल तक हिंदी बोला है। हाँ, हाँ, वो तो जब उसने प्री स्कूल जाना शुरू किया तो उसने छोड़ दिया। हाँ, हाँ, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि उसका जो पिक बहुत समझता सब है, पिक हाँ, बहुत हाँ, जल्दी कर लेता है। अब ये 1 हाँ, महीना इंडिया रह जाए तो वो हिंदी बोलेगा पूरी, पढ़ नहीं पाता है पर बोल लेगा। और तो ट्राई तो मैंने किया कि मैं कि हाँ, जितना दे सकूँ, लेकिन वो है कि एक जो नेचुरली एक समाज में रहने से आता है, हाँ, हाँ, उतना वो चीज़ मिसिंग थी, तो थोड़ा-सा अकेलेपन की परेशानी थी। स्कूल के दोस्त होते हैं, पर वो जो जो एक फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स का जो सर्कल होता है, हाँ, इंडिया में काफ़ी बहुत हाँ, सोशलाइज़ेशन होता है। और हाँ, बर्थडे जिस दिन होता है उसी दिन मनाया जाता है, वीकेंड को नहीं मनाया हाँ, तो जाता है। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, राइट, उस दिन का। हाँ, तो सोशल लाइफ तो इंडिया की जितनी वाइब्रेंट है, हाँ, वो तो यहाँ मिलेगी नहीं। तो वो चीज़ तो डेफ़िनेटली बच्चे भी महसूस करते ही हैं हाँ, कि हाँ, ऐसा है। और थोड़ा-सा ना सोशल मैच्योरिटी इंडिया में जल्दी आती है, क्योंकि आपको इतना इंटरैक्शन होता है। हाँ, हाँ, तो
एडजस्ट करना, नेगोशिएट करना, माँ-बाप को सोचना भी नहीं पड़ता है, बच्चे सीख जाते हैं, हाँ, कैसे बात करो, कैसे और एक होता है ना कि दूसरों की इज़्ज़त करना, कैसे क्योंकि इतने लोग आते-जाते हैं। जैसे हाँ, मुझे याद है कि मुझे पता था कि जब अंकल-आंटी या कोई आ रहे हैं, तो मैं उनसे कैसे बात करूँगी, हाँ, किस तरह से इज़्ज़त दूँगी, किस तरह उनके घर जाएँगे तो बात करेंगे। वो सब चीज़ें यहाँ इतनी कम होती हैं जैसे कि हमारा भी सर्कल है फैमिलीज़ का, हम लोग मिलते हैं साल में 7-8 बार मान लीजिए मिल लिए, लेकिन उतना रेगुलर उतना नहीं होता और तो उसमें इंडिया में तो हर दूसरे दिन या हर दिन ही कोई हाँ, ना अगर कोई कुछ मिलता स्पेशल है, बनाया तो पड़ोसी को देख के आओ, हर किसी को हमारे दिया घर ये बना है। रोज़ पड़ोसियों से मिलते हैं, बिल्कुल, बातचीत हो रही है, हाँ, हँस रहे हैं, बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तो वो चीज़ नहीं है, तो उस उतना जो बच्चों को इज़्ज़त करना और सोशल जो स्किल होती हैं, वो हाँ, डेवलप करने में टाइम लगता है। हाँ, वो जो हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया था कि इंडिया में कि ये तो आता ही है, इसको हाँ, सिखाना थोड़ी ही पड़ता है। सही, लेकिन वो चीज़ सिखानी पड़ती है एक्चुअली मैंने देखा कि उसकी थोड़ा-सा प्रैक्टिस करानी पड़ती है कि ऐसे बात करो, बड़ों की से बात कर एक तो हिंदी की परेशानी है ही, हाँ, हाँ, तो लेकिन बड़ों से बात करो तो इस तरह से करो तो होना चाहिए। जो कि हम लोग को किसी ने कभी बोला नहीं और हम अपने हाँ, आप ही करने लगे थे आई थिंक। मुझे हाँ, नहीं याद है कभी मेरे पेरेंट्स ने कहा हो कि इनको ऐसे नमस्ते करो या वो करो, हम लोग खुद ही करते थे। हाँ, दूसरों से सीख लिया, करने लगे। हाँ, तो मेरे ख़्याल से वो सब चीज़ें, वो सब थोड़ी परेशानियाँ हैं। उस चीज़ का मुझे हमेशा एक रहता था कि बच्चा दूसरे देश में पालना चाहिए कि नहीं पालना चाहिए। हाँ, जबकि हम लोग इसीलिए उस जगह आकर बसे जहाँ पर इंडियंस बहुत हैं। तो हाँ, बे कि हमें ये फ़ायदा है कि हाँ, बहुत मल्टीकल्चरल है, हाँ, इंडियंस काफ़ी हैं। तो उससे उससे ये है कि ये नहीं है कि बिल्कुल अलग कल्चर लगता है। हाँ, कि आप बिल्कुल कहीं उखड़ के से के आके कहीं और बस गए हैं थोड़ा एक्सेप्टेंस ज़्यादा है हाँ, क्योंकि दूसरे लोग आपसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। हाँ, तो वो सब फ़ायदे हैं, हम लोगों को इतना बे एरिया की बुराई नहीं करनी चाहिए, बे एरिया काफ़ी अच्छी जगह है वैसे रहने की। ये है कि क्योंकि नया है और हम लोग फर्स्ट जनरेशन हैं, तो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट की तो परेशानी और थोड़ा जिस कल्चर में आप पले-बढ़े हैं, उसमें मिस आउट तो आप करते ही हैं। और हाँ, प्लस यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ हाँ, खाना भी रोज़ पूरा रोज़ हाँ। खुद करना पड़ता है। इंडिया में जैसे होता है कि मेड्स का है, जैसे मेरी दीदी को ये परेशानी होती है कि वो ये मेड छुट्टी पे चली गई, दूसरी वाले अच्छी मिलेगी नहीं है और हम सोचते हैं कभी मेड मिल जाए तो अच्छी। मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, वही सही तो। बात है। हुँ। अच्छा, और मुझे ये भी पूछना था कि आजकल बहुत सारा न्यूज़ में बहुत कुछ इंडिया के बारे में सुनने को मिल रहा है कि यहाँ ये वायलेंस हुआ, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो कुछ फासिज़्म चल रहा है। इस बारे में आपकी क्या-क्या राय है? वो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होता है कि मैंने यहाँ आकर अभी शुरू में तो नहीं रियलाइज़ किया पर मैं न्यूज़ में और जो जनरल उसमें बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, तो हुँ, इसलिए अ, मैंने रियलाइज़ किया कि जितने भी यहाँ के चाहे मेनस्ट्रीम मीडिया हो, चाहे चैनल हो, सच से ज़रूरी नहीं है कि वास्ता हो, उन हाँ। सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है हुँ, और उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही आगे बढ़ाना है। तो एक कोई इंसिडेंट हुआ, तो उनकी अगर इंडिया के बारे में राय ऐसी है, तो सिर्फ़ वो उस इंसिडेंट का एक 1/10 हिस्सा दिखाएँगे, पूरी पिक्चर नहीं दिखाएँगे। हुँ, तो जब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर दिल्ली रायट्स हुए और उन्होंने जो यहाँ पर बोला और जो एक्चुअल में हुआ उसमें इतना फ़र्क था कि मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ रही कि बड़े से बड़े न्यूज़पेपर चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या एनपीआर हो, सब झूठ बोल रहे हैं। आई मीन लिटरली झूठ बोल रहे हैं और ये मैं प्रूव कर सकती हूँ कि वो आर्टिकल क्या था और रियलिटी क्या है। हाँ, मैंने कहा तो उस समय मुझे मतलब कि पहले लगता था बीच-बीच में आर्टिकल पढ़ते थे कि हिंदूज़ फासिस्ट हैं। मैंने कहा कि हमने कहा कि यार फासिस्ट की डेफिनिशन क्या है? और हिंदुइज़्म क्या है और हम लोग क्या हैं? कोई वास्ता ही नहीं है, बिल्कुल ऑपोज़िट है क्योंकि हिंदूज़ और हिंदुइज़्म तो सबको एक्सेप्ट करता है। फासिज़्म में तो है कि आपने किसी कहा कि वी आर द कि हम अच्छे हैं और बाकी सब वो हैं और बाकी सबके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है। हाँ, लेकिन हिंदुइज़्म में तो कहीं पर है ही नहीं ये बात कि कोई दूसरा है, सब अपने हैं।
हाँ, हमेशा यही बोलते हैं कि पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है, जितने भी इसमें रहते हैं वो सब हमारे भाई-बहन हैं। हाँ, ये बोला गया है हमारे हम लोगों ने तो हमेशा तो हमने कहा ये फ़ासिज़्म इन्होंने लगाया कहाँ से? ये आया कहाँ से? तो धीरे-धीरे हम मैंने भी थोड़ा-सा रिसर्च करना तो यहाँ का क्योंकि ये आयाम ये जो एस्पेक्ट था, ये कभी सोचा नहीं था यहाँ आके अभी तक। तो हाँ, पिछले 1-2 साल में मैंने जब इस तरह की न्यूज़ पे मैंने कहा कि ये तो बहुत ही गलत बात है क्योंकि इससे जो है हमारे जो बच्चे यहाँ बढ़ रहे हैं, हाँ, प्लस हम हिंदू पॉपुलेशन जो यहाँ पर है और इंडिया में है, उसके ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। हाँ, लोग जब जो झूठी धारणाएँ बनाएँगे तो फिर उससे हेट क्राइम होते हैं, हाँ, ठीक है? उससे बहुत डिसएडवांटेजेस होते हैं जब आप तो आप हमारे बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता। तो फिर मैं ये एजेंडा कह क्या रही है? हाँ, राइट, मैं तो ये कह रही हूँ आप जो फैक्ट्स हैं वो आप हम यही कह रहे हैं कि जो सच्चाई है वो पूरी सच्चाई आप लिखिए। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं आपसे कि आप कुछ और करिए, लेकिन जब आप झूठ बोल रहे हैं सीधे-सीधे, हुँ, तो ये इसमें फिर हमको लगता है कि आपका कोई एजेंडा है, हुँ, क्योंकि किसी कारण से हम लोग आपको पसंद नहीं है। और उससे ये है कि जो हमारे बच्चे यहाँ पल रहे हैं और वो अपने कल्चर को खुद को हेट करने लगते हैं। फिर और जब आप और अपनी संस्कृति और अपना कल्चर जाने कि वो कितना पुराना, कितना गहरा और कितना नॉलेजेबल है, कितना ज्ञान है उसमें और हाँ, उस कल्चर को हेट करने लगो तो उससे वो तो बहुत ही दुःख की बात है। तो इसलिए मैंने भी काफ़ी थोड़ा रिसर्च करना कि ऐसा क्यों है और लोगों को सच बताना शुरू किया। जो भी हमारे पास ज़रिया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे जितने फ्रेंड्स हैं हमारे, उनसे बात करके कि इस तरह की बातें आप फैलाकर कितना गलत कर रहे हैं। अगर आपको सच जानना है, सच बोलिए हमें और कुछ हम नहीं कह रहे हैं। फैक्ट्स आप रखिए सामने और जो पूरा कुछ जो हुआ वो आप बताइए तो हमें फिर कोई परेशानी नहीं है। तो एक्चुअली मुझे काफ़ी चिंता रही है कि हमारे हिंदू समाज अगर इस तरह से फेस करता रहेगा, तो उससे हमारा भविष्य में हमें हमारे कष्ट बढ़ेंगे। तो नहीं, सही बात। इसलिए इसलिए हमको ये सारी जो झूठी धारणाएँ हैं और जो झूठ हमारे बारे में फैलाया जाता है कि हम फ़ासिस्ट हैं, हमने आज तक कभी किसी को प्रोसिक्यूट नहीं किया है और कि कहना कि हमने किसी की या फिर इंडिया में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है, हाँ, जो जो झूठ फैलाया जा रहा है, पहले उसको उसके अगेंस्ट मैंने दूसरों को फैक्ट्स बताना भई अपने स्तर पर हम जो कर सकते हैं, वो हम करने की कोशिश करते हैं। सही फैक्ट्स बात। बताना शुरू किया कि ऐसा नहीं है और एक बात की मुझे खुशी है कि कम से कम जो लोगों को मैं जानती हूँ, जो यहाँ के अमेरिकन्स भी हैं, कम से कम मैं उनको दिखा पाई कि जो है ऐसा नहीं है कि जो न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं वो सच है, वो किस कारण से झूठ बोल रहे हैं वो तो मैं एग्ज़ैक्टली नहीं जानती। लेकिन डेफ़िनिटली वो सच्ची बात यहाँ तक नहीं आती है। फिर उससे मुझे इतनी हँसी आती है कि जो हम लोग जिस दुनिया में रहते हैं, जो हम हमारे देश और हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, हम दूसरे देश के बारे में सुन रहे हैं इन हाँ, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से और हमें पता नहीं वो सच बोल रहे हैं उनके बारे में कि नहीं बोल रहे हैं। no, that's totally true because if they can lie about us, they can lie about others, right? Others It's also. the So credibility. Yeah. right. So we're living in a make believe world. Yeah. है कि Yeah, नहीं? yeah, because that day actually I was talking to someone and they were asking me, oh, so this current government is killing all the minorities in India, and I was surprised. Okay, what are they meaning? But I would like your comment on that too, because like you mentioned, like if we publish the wrong news, then it creates the wrong impression in the eyes of the person who is just reading the news and doesn't know anything about the country. Yeah, yeah, absolutely. You know, for people, you can understand that. For example, if someone tells me about an XYZ country and I read on the newspaper, the first instinct is to believe exactly the written word, isn't it? You don't doubt it if a so-called respectable newspaper that you're reading has an article because they vouch for their journalistic abilities Yes. and but now because we are from India and we have friends and family there and we have been brought up there and then being told that minorities are being killed over there
is 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 such an absolute lie, and that it is so surprising that why are these doing that. Was so slowly I have come to realize that this whole world, the so-called journalists on the news channels, they are all actually interest groups, because after all they are held by different private individuals, and those individuals have their own long held beliefs, and whatever has been, for say past 100 years, the ecosystem that we are living in. I have realized that a lot of it is also because of the colonial prejudice Mhm. that is there, which is still driving the narrative that you see. So ultimately it is about the narrative, not about facts. So That's whatever does not suit the narrative, those facts are set aside. So if there are 10 things that happen and only one thing suits the narrative, only that will be told. And so to say that minorities are being in any way harassed is such a joke. yeah. In fact, I think that India is far more tolerant than US Yeah. as people. I mean, not just right now. Historically, I mean, from ancient India, you will hear whether it was Jews who went and settled there, running from persecution, or the Parsis, the Iranians who were running from the Islamist invaders and who came and settled there, or people from any part of the, many came from Southeast Asia, many came from Africa also. All of them, Arabs came and settled there. All of them were accepted. Yeah. I have there was never, they were accepted, and if they wanted, they assimilated in the society. If they did not want to assimilate, they were respected. In fact, the Parsis, the Iranians, ancient Iranians who came, who ran away, were given land, and today many of them are very successful business people and industrialists, and they are still very well respected. So to say that in India, anyone is persecuted because they are minorities is an absolute complete lie, and it shows that the Western world looks at India from their own Western perspective. They do not realize the Indic culture and the Hindu ideas and the acceptance, because Hinduism is not at all exclusivist or supremacist. It accepts everybody. So historically, I've challenged anyone to tell me which minority was ever hurt or persecuted. So that has been our culture, and I think we learn it naturally. And the more I observe, I see that a lot of things of who we are as people has been inherited through generations. It is done subconsciously, unconsciously. It just is the way we are. I do not ever think that Indian society has ever put one community and discriminated. Yeah, there have been social evils, but it was not that that And not in every society, right? Some good people, yeah, bad people. yeah, there are social evils in every society, Mm. and they develop for a lot of reasons. But it has been what has been is being said in newspapers are such big lies that I am like, okay, and you are supposed to be very respected, and you say all about journalistic excellence, but Yeah. I don't see it. Yeah. And so I said, okay, I will tell people around, and I will show them facts, and I will show them this is exactly what happened. For example, what happened in Delhi riots. We have videos of it that these people do not talk about. Those are Yeah. That's clear so true. videos, Yeah. facts, that how the riots were pre-planned and how the acid bombs were thrown on people, but they don't talk about it here. Yes. So it shows that there was some kind of narrative they wanted to talk about. They didn't want Well, to like talk about similar way, facts. like the farmers' protest, right? Which the Yeah, later on the whole plot got unearthed because of yes, Rita's accidental sharing of the whole toolkit, right? So, and yeah, I also heard that I think in India,
almost 50% of the seats in the government jobs and the government colleges are reserved for minorities. Am I right? Yes, Yeah. yes. So So that means they are treated really well. they are treated well. It is the law is all there, and well, a lot of issues that you see in India will soon also disappear. A lot of things happen because of poverty. Yes. So poverty causes a lot Corruption, of like, human suffering, yeah. and I think as the country grows and economically develops, a lot of those issues that people are screaming about will disappear, and because they are making it too big instead of focusing on the development and the positive aspects. So just give it, I think, 1 or 2 decades, things will be a lot more different. Yeah. So, And I was reading recently an article. I don't know if you want to comment on it or not, but that right from being an exporter of copper, India went to being an importer because these people guised as climate activists, they totally like forbade the mining of the copper. And so now Pakistan went to become that exporter of copper. yeah. And India is not able to mine its own copper because of these. And do you think like is there any agenda behind that? Because of course, copper can be mined, right, in the proper way without impacting the environment too much. But if you have any comments on that, or we can go to Well, I would say that you know what, India is a democracy, yeah, and everybody has a right to speak, unlike in Pakistan and more or China or more autocratic countries. So it is because of that. I think that people who claim to be environmental activists yeah. as such, they collaborate with the international interests to Mhm. create a lot of narrative, and they created this situation that led to business going out of hands of India. Ultimately, it is not that copper mining in the world has stopped. Yeah, Right? It is just that it just would make the country poorer if yeah, we are not able to. So these things just keep the country poor. yes. If you see, the current government of India has taken very strong steps towards controlling the environmental problems that's happening. So development is possible, definitely, with in conjunction with and taking environmental precautions, but that does not mean that you shut down businesses, That's because so true. I totally agree because every country, like we can't stop oil mining from Middle East, right? Even if it pollutes the country. exactly. Yeah. Have you stopped taking out oil from Yeah, the, yeah. the Or in Pakistan, if we are producing, so again the pollution is happening, whichever yeah, country is. it is happening in So, any, that's what I said, yeah, that I think there are certain issues, and that's what we also laugh about, is that these mainstream media does not have any problems, seem to have problems with autocratic countries. They are yes, never they like have the problems. minorities are suffering in Uyghur, the Muslim Yeah, minorities in Uyghur are being tortured, yes. and then Look, again in Balochistan in Pakistan, Balochistan, what's happening? I mean, it is horrible, yeah, horrible situation right over like there. women are abducted and raped and tortured, and no one And does anything. converted, and all those things are happening, and No that one is of cares, no, pretty much. yes. Yeah, So autocratic countries can continue to do that, and somehow they have no problem with that. But a country like India, which is so democratic, which is so free, and where people are far more safe and have far more rights, it is over there that they keep screaming that democracy is dying, though it is not. And and I that is think the most democratic it country, is the right? most democratic country. It is the most free country Yeah, as such, yeah. in the whole world. Let's go And to, yeah, let's go to the next question in the interest of time. I know if we keep on discussing, it will I go on know. forever, right? I Because we are know. passionate about this topic. And also, I feel like there were in Julius Caesar, it says, but Brutus is an honorable man when Mark Antony is trying to expose Brutus, who got Caesar killed. So, same way, right? So, calling a democratic country autocratic and not saying anything to the other the
rights being violated and Exactly. human I'm rights saying being nothing about it or yeah, writing nothing about it. yeah, Oh, that country is like that, so we can't yeah, do yeah, anything about it. yeah. And so So it's okay for them to kill people. अब आप मुझे कुछ अपने बिज़नेस के बारे में बताइए, आयुर्ग्राम के बारे में, कि So आप I was क्या-क्या सर्विसेज़ ऑफ़र करती हैं? कहाँ आपका वेबसाइट क्या है? और किस तरह से लोग कॉन्टैक्ट करें अगर उनको इंटरेस्ट हो इसमें तो? तो आयुर्वेस्ट्रम जो है ओह ये सॉरी मैंने आयुर्ग्राम बोला, आयुर्वस्त्रम। या एक्चुअली मैंने ये शब्द इस तरह से बनाया कि आयुर का एक मतलब तो मेडिसिन होता है, हाँ, 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 दूसरा इसका मतलब होता है लाइफ, जीवन। हाँ, तो मैंने और वस्त्रम तो क्लोथ्स कपड़े। हाँ, हाँ, तो जीवन क्लोथ्स हाँ, उस तरह से लेके मैंने उनको मिलाकर एक शब्द बनाया कि बहुत अच्छा। क्योंकि मैंने बिज़नेस इस तरह से शुरू भी किया था कि ये इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स पर बेस्ड है। हाँ, तो जो कि हैंडीक्राफ्ट इंडिया के बहुत तरह के हैं, वैरायटी है और बहुत सुंदर हैं। हुँ, तो और जो भी वहाँ पला-बढ़ा है उसके लिए तो मतलब कि उसने देखा है, जाना है, हम लोग रेगुलर में पहनते थे हुँ, और एप्रिशिएट भी करते थे, तो वो उस तरह की लाइफ़ जी है। हुँ, तो वो जो इंडिया के फैब्रिक और ट्रेडिशंस थे, उनको लेकर जब मैं यहाँ पर जैसे आई, तो मैंने कहा ओके वेस्टर्न तरीके के कपड़े ड्रेसेज़ हैं, हाँ, लेकिन हम कपड़े या जो फैब्रिक है वहाँ का या एम्ब्रॉयडरीज़ हैं वहाँ की, वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने क्योंकि मैं लखनऊ की हूँ, तो लखनऊ की एम्ब्रॉयडरी बहुत फ़ेमस है, हाँ, तो चिकन का काम। चिकनकारी जो है वो बहुत फ़ेमस है, तो मैंने उससे शुरू किया। तो उस और मुझे काफ़ी एक तरह से हैरानी भी हुई कि यहाँ पर लोगों को पसंद भी था, काफ़ी ऐसा लोग खरीदते भी थे। तो धीरे-धीरे फिर मैंने जब देखा कि यहाँ पर रिस्पॉन्स अच्छा है, तो मैंने कहा कि चलो इसको एक बिज़नेस का रूप दे देते हैं। तो फिर मैंने अपना बिज़नेस रजिस्टर किया और अपना एक क्लोथिंग लाइन बनाया कि डिपेंडिंग ऑन द कि कस्टमर बेस को मेरी क्या पसंद है, उसके हिसाब से और अब मैं ऑनलाइन जो है कई जगह पर जैसे अमेज़न पर अपनी खुद की वेबसाइट ayurvastram.com पर, उस पर मैं बेचती हूँ और नए डिज़ाइन्स हमेशा आते रहते हैं, तो एम्ब्रॉयडरीज़ हैं, वहाँ की ब्लॉक प्रिंट्स हैं, तरह-तरह की वीव्स हैं, तो उनको जो है थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल्स देकर हाँ, उस उन्हीं उन्हीं डिज़ाइन्स के तो एक एक नई चीज़ तैयार होती है, जो लोगों को यहाँ पसंद भी आती है और मैंने देखा है कि अमेरिकन लेडीज़ को मेरी क्लाइंट्स इंडियन भी हैं और बहुत सारे अमेरिकन वुमेन भी क्लाइंट्स हैं। और उनको पसंद भी बहुत आता है, कॉटन उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली इतना गर्म जगहों में, गर्म मुंबई, जगहों में नोएडा इस तरह हाँ, की जगह। हाँ, वहाँ पर उनको कॉटन बहुत पसंद है और कैलिफ़ोर्निया में तो ख़ैर उतनी गर्मी पड़ती नहीं है, पर अगर आप मिडवेस्ट या ईस्ट कोस्ट पर जाएँगे तो समर्स में काफ़ी गर्म हो जाता है। इनफैक्ट हाँ, न्यूयॉर्क में भी बहुत ह्यूमिड और हॉट हो जाता है। हाँ, तो कुछ लोग तो हैं जो कहते हैं जो मेरे कस्टमर हैं कि मैं तो सिर्फ़ कॉटन ही पहनती हूँ। हाँ, ह्यूमिड के क्लाइमेट में तो कॉटन के सिवा कुछ और अच्छा भी नहीं क्या लगता, पहने कॉटन या सिल्क। हाँ, या और वो जो है स्किन पर अच्छा भी ज़्यादा लगता हाँ, है, ब्रीदेबल होता है। पॉलिएस्टर में तो बहुत परेशानी हो जाती है। हाँ, तो इसलिए कॉटन्स मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ और फैब्रिक्स और भी यूज़ करते हैं पर मेजॉरिटी कॉटन है, हाँ, थोड़ा लिनेन है। लिनेन थोड़ा महँगा होता है तो उस अब एक क्लाइंट बेस बन गया है। मेरे साथ ये भी था कि भई अगर आपके जो फैमिली होती है तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि प्रायोरिटी क्या है। तो मैंने हाँ, बिज़नेस को बहुत नहीं बढ़ाया, इतना रखा था कि मैं घर से मैनेज कर सकूँ। अब धीरे-धीरे होपफुली जो है कि अब एक बार बेटा ग्रेजुएट कर जाए हाई स्कूल तो हाँ, मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा होगा। सो इट इज़ अबाउट द बैलेंस हाँ, वर्क लाइफ हाँ, बैलेंस जो होता है, उसका इश्यू रहता है स्पेशली क्योंकि मदर्स को एक थोड़ा-सा फ़ील होता रहता है कि बच्चों को हम पूरा टाइम दें कि हम उसे बहुत अच्छे से पालें। तो और स्पेशली जैसे हमने पहले बात की थी कि यहाँ पर बच्चों को थोड़ा अकेलापन होता है और मिल हमको जाता भी है। लगता है कि हम वो सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं, हाँ, जो कि जैसे इंडिया में अपने आप मिल जाता है। तो हुँ, आप थोड़ा टाइम ज़्यादा बच्चे के साथ व्यतीत करना चाहते हैं।
Oh, तो that's इसलिए that's फिर great. है सो ये मेरा बिजनेस है आप ayurvestran.com पे जाकर देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या ऑफरिंग है Huh. और So क्या thank you, क्या Shalja. It was very nice talking with you. And for the viewers, I would like to just sum up the parts we talked in Hindi. So this is a bilingual channel, so we usually use English and Hindi in all the interviews. And so Shalja has taken the bold step to spend more time with family till her kid grows up, and also manage her business on the side. And her boutique ayurvastram.com is online on Amazon as well, and she sells mostly handmade Indian embroidery and Indian clothes based in cotton or linen. So you can find all her amazing designs on ayurvastram.com. And we talked about the different issues immigrant Indian women face when they immigrate to US, because the culture is different. They lose their support system of family and the neighbors, which is very common in India. And at the same time, they have to raise a kid in India whom they want the kid to know the Indian culture, and at the same time give them the right life, which is here they have to give more time because there's more loneliness and there is less. I would say organic interaction than in India, because in India usually you know your neighbors and you go and hang out with them every day, and also there is less informal interaction between the community and the individual as a whole, and that gives some more of a feeling of loneliness. And also it takes some time to adjust to the new society, the new culture, the new environment, and get used to it and build a life around it. And Shelda has been very successful on not just only doing that with her family as well as her business, but also making sure that her country's name doesn't get maligned in the wrong way by people following their agenda. So she tries to expose the truth. And if you have any questions about any of the things about India in the news which you have read, please feel free to reach out to Shalja or me. And with that, I have one last question, and then we call it a night today. So, Shalja, what advice will you give to an Indian woman wanting to immigrate to US, so who has never been here before? yes. One thing is that if you want to immigrate to this place, think about it that what exactly are you looking for more than just immigrating to US for material success. If it is also like, okay, your career growth or is important or you want to learn new things, please do. It is a beautiful place and nice people, and Bay Area, I must say, is a lovely, lovely place to live. But also always remember that that uh, things that we have taken for granted, like our family, our society, our friends, our the fun-filled life that you have, you may miss it over here. So you be prepared for that, that will be the case, and how you're going to balance it out, how you're going to find new ways to enjoy your life and live it to the full. Just be prepared that it is not going to be like India Yeah, in a no lot of mates ways. here. You have to do everything on your own. You have to do and be prepared to cook for whole of your life and clean the kitchen every day. There are, no matter how much you earn, you will not find the right people to do your it. Nobody is going to come to your house every day to Clean and cook. clean it. Yeah, to do it. So cook and clean, and on top of that, do whatever else you want to do and raise your kids. And also another thing, make a lot of efforts to stay connected to your culture. I think that is one way that would really make you happy. So sometimes we Connected take to our the roots, happiness for right? Yeah. granted. Yeah. So definitely, that is an advice that do not take what you have for granted. Try to appreciate Oh, your people around you more, yes. and the society and the values and the way, and this there is some companionship that you get and you use, so you take for granted so easily in India.
So those are the things definitely. But as he said, that the whole world, the whole earth is the home. So you can make home anywhere you want. Just understand that when you move to a new place, there will be some challenges, and be ready for that. Bring your culture, bring your society, your values here, and grow them. It will take some effort, but I think it can be a beautiful journey. Yeah. So be prepared for the changes. Be prepared to do everything on your own. Like my mom used to say, you are doing your own dishes, driving your own car, doing your own laundry. Still, you want to be there. Be prepared for all that, and also be prepared to be on your own for a long amounts of time without having that support system from the neighbors and your relatives who come and help you whenever you need. And as long as you're adaptable and flexible, you can make it work wherever you go. So Right. thanks a lot, Shalja. It was wonderful having you. Until we meet next, namaste. Namaste. Thank you so much for having me. Namaskar.